رخ کر رہے ہیں قومی اسمبلی کا، جہاں پر اس وقت مریم اورنگزیب اظہار خیال کر رہی ہیں. آئیے آپ کے لیے چلتے ہیں. سیاستدانوں کے اوپر بھینس چوری کے مقدمے درج کیے جاتے تھے. جب ذوالفقار علی بھٹو شہید کی پھانسی کے اوپر شادیانے بجائے گئے، غلطی تو تب بھی ہوئی تھی. ایک عامر کی نظریہ ضرورت کو استعمال کرنے پر ایک عامر کی کابینہ کے حلف لیے گئے، غلطی تو تب بھی ہوئی تھی. لیکن جناب اسپیکر، غلطی تو تب بھی غلطی ہی تھی. اور اگر میرے پر نہ جلیں، اور بہت احترام کے ساتھ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جب ایک معطل شدہ آئین کے اوپر پی سی اور ایل ایف او کے عدالتوں کے حلف لیے گئے تو وہ میں سمجھتی ہوں غلطی نہیں، ایک گناہ تھا. اور یہ بھی میں کہنا چاہوں گی کہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ ان غلطیوں پہ اور پرانی اور تلخ حقیقتوں پہ اگر ہم نے اگلے 70 سال افسوس ہی کرنا ہے تو میرے خیال میں اس پارلیمان میں بیٹھے ہوئے لوگوں کا مقصد وہ نہیں ہے جو آئین ان کو مقصد دیتا ہے اور جس آئین کا ہم حلف اٹھاتے ہیں. آئین کی اس کتاب جس کی ابھی فہمیدہ مرزا صاحبہ بھی بات کر رہی تھی، آئین کی اس کتاب کو ردی کی ٹوکری میں پھینکا جاتا ہے. آئین کی اس کتاب کو بوٹ کی نوک کے اوپر تصدیق کا نشانہ بنایا جاتا ہے. آئین کی اس کتاب کو اس وقت ذلت اور تضحیک کا نشانہ بنایا جاتا ہے. لیکن آج 70 سال گزرنے کے بعد بھی ہم اسی پارلیمان اور اسی آئین کا مقدمہ پیش کر رہے ہیں. اگلے 70 سال ہم لوگوں نے کس طرح آگے جانا ہے، اکٹھے ایک انفرادی سوچ کو الگ رکھتے ہوئے ایک اجتماعی سوچ کے ساتھ اس ملک کو کس طرف لے کر جانا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہوں گی جناب اسپیکر کہ ہم عدالت کا احترام کیوں کرتے ہیں. ہم عدالت کا احترام اس لیے کرتے ہیں کہ عدالت اس آئین کی نگہبان ہے. ہم عدالت کا احترام اس لیے کرتے ہیں کیونکہ عدالت قانون کی پاسبان ہے. ہم عدالت کا احترام اس لیے کرتے ہیں کیونکہ عدالت میری عزت، میرے وقار اور میری حرمت کی ضامن ہے. ہم عدالت کی عزت اس لیے کرتے بطور ایم این اے نہیں. میری عزت، میرا وقار اور میری حرمت کی ضامن عدالت بطور ایم این اے نہیں بلکہ ایک انسان ہونے کی حیثیت سے ہے. اور میں ایک ادنا شہری مریم اورنگزیب اگر میں یاد دلاؤں کہ وہ پارلیمان جو اس آئین کی خالق ہے، وہ آئین جس سے تمام ادارے جنم لیتے ہیں، یہ پارلیمان اس آئین کو جنم دیتی ہے جناب اسپیکر. اور جناب اسپیکر، عدالت محض میرے فکرے سے اور عدالت کا احترام کون نہیں، اس ایوان میں بیٹھا ہوا شخص، اس ملک کا ہر شہری اور اس شخص کے اوپر بات یہ کل کہا گیا کہ ایک شخص کے لیے محاذرائی ہو رہی ہے. جناب اسپیکر، عدالت کی عزت کسی کے فکرے کی محرون منت نہیں ہوتی جناب اسپیکر. اور جب عدالت سے ایسے فیصلے آئیں جس کے اوپر اس ایوان میں بھی بحث ہوئی، وہ کمزور فیصلے جو منتخب نمائندوں اور منتخب وزراء اعظم کو منی لانڈرنگ، پیسہ چوری، عوام کا پیسہ لوٹے جانے کے الزامات کے اوپر ایک اقامے کے اوپر گھر بھیجا جائے جناب اسپیکر. اب جب اس طرح کے فیصلے آئیں گے، جب اس طرح کی بات ہوگی اور عدالت سے نواز شریف کے خلاف نہیں، حکومت کو سسیلین مافیا کہا جائے، منتخب وزیر اعظم کو گاڈ فادر کہا جائے، ایوان میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو اس طرح کے ریمارک سے بلایا جائے تو یہ پاکستان کے عوام کی رائے کی نفی ہے. اور اس سے جو روایت شروع ہوئی ہے، جس طرح کل وزیر اعظم نے کہا کہ تمام اداروں کو اپنا اپنا کام کرنا چاہیے آئین کے مطابق. جمہوریت کیا ہے جناب اسپیکر؟ مجھے 4 سال اس ایوان میں جمہوریت کی ہم نے بات کی، ہم 70 سال سے جمہوریت کا مقدمہ پیش کر رہے ہیں جناب اسپیکر. جمہوریت کیا ہے؟ جمہوریت محض لودرا میں الیکشن کا نام نہیں ہے جناب اسپیکر. جمہوریت ایک پروڈکٹ نہیں ہے جو ہم پڑھتے ہیں. جمہوریت ایک پروسیس کا نام ہے، جمہوریت ایک رویے کا نام ہے. جمہوریت اس کا نام ہے کہ اس پریس گیلری میں بیٹھے ہوئے آج لوگ جو سوچتے ہیں وہ لکھتے ہیں، جو چاہتے ہیں وہ بولتے ہیں. اور ہم یہاں جیسے کہا جاتا ہے جناب اسپیکر کہ وی may differ from what they say, but till death we stand here to defend their right to say. جناب اسپیکر، جمہوریت وہ ہے کہ ہم پاکستان کے آئین اور قانون کے آگے تابع ہوں. ہم عدالتوں کے آگے منتخب وزیر اعظم پیش ہوئے اور صرف ایک یک جنبش، ایک قلم سے وزراء اعظم کو گھر بھیجا گیا اور سر جھکا کے گئے. آئین کو توڑنے والے، ملک کو توڑنے والے جناب اسپیکر، آئین کو
रद्दी की टोकरी में फेंकने वालों के खिलाफ कौन सा फैसला आया? किसने फैसला सुनाया जो 22 करोड़ अवाम की राय के ऊपर शब खून मारते हैं? जनाब स्पीकर, मेरे जो आबाओ अजदाद, मेरे दादा, मेरी वालदा और अब मैं, हम कब तक ये मुकदमा पेश करते रहेंगे? लेकिन इस ऐवान में जब तक, कल दूसरी तरफ से आवाज आई कि ये सिर्फ मुस्लिम लीग नून का मुकदमा पेश हो रहा है। जनाब स्पीकर, हम कब तक इस इनफरादी सोच के साथ इस ऐवान की इज्जत सिर्फ उस वक्त बहाल होगी, उस वक्त इस ऐवान की इज्जत महफूज होगी जब इस ऐवान के ऊपर हमला करने वाला और इस ऐवान के ऊपर लानत भेजने वाला इस ऐवान के अंदर से नहीं होगा। उसको पाकिस्तान की अवाम, आज मोहम्मद नवाज शरीफ की बात होती है, शहीद भुट्टो को फांसी लगी थी तो उस वक्त इफ आई एम असैसिनेटेड में जुल्फिकार अली भुट्टो साहब ने लिखा था कि मुझे कब्र में उतारने वाले ये सोच रहे हैं कि मैं खत्म हो रहा हूं या मैं खत्म हो जाऊंगा, मैं कब्र से भी लोगों के दिलों की हुकूमत करूंगा। और आज ऐसा ही हो रहा है जनाब स्पीकर। नवाज शरीफ ये एक शख्स की बात नहीं है जनाब स्पीकर। नवाज शरीफ एक सोच, एक आइडियोलॉजी, और नवाज शरीफ एक शख्स नहीं है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का खाली सदर नहीं है जनाब स्पीकर। नवाज शरीफ वो जनून है जो पेशावर से कराची तक तारी हो चुका है। नवाज शरीफ एक आइडियोलॉजी है जिसने पाकिस्तान में वोट की पर्ची की इज्जत और पाकिस्तान की अवाम की राय की इज्जत और वोट के तकद्दुस की बात की है, और उस आइडियोलॉजी ने पाकिस्तान की अवाम को एक दूसरे के साथ जोड़ दिया है। नवाज शरीफ एक नशा है और वो नशा पाकिस्तान की अवाम की इज्जत और उनकी राय की इज्जत और बहाली का नाम है। जहां जाता है लोगों का समंदर क्यों उमड़ आता है? क्यों खटकता है नवाज शरीफ? क्यों सिर्फ ये कहा जाता है कि नवाज शरीफ जो है वो एक शख्स है जो ये सब काम कर रहा है? नहीं जनाब स्पीकर, आप लोग अपने टीवी, अपने मीडिया स्क्रीन्स, पूरा पाकिस्तान जब नवाज शरीफ ये कहता है कि उसके हक में जो फैसला आया है वो पाकिस्तान की अवाम को मंजूर है, तो लाखों की आवाज आती है नहीं मंजूर है। और वो फैसला जो शुरू हुआ और फैसले के ऊपर तनकीद जो है वो मेरा हक है, वो नवाज शरीफ का हक है। उसको एक अकामे के ऊपर इल्जामात की जो बौछार थी और आज तक वो फैसला सुनाया गया पाकिस्तान के वजीर आजम के बारे में। पाकिस्तान के वजीर आजम को गॉड फादर कहा गया, पाकिस्तानी हुकूमत को सिसिलियन माफिया कहा गया जनाब स्पीकर। और एक कलम से सर झुकाकर मनोअन तस्लीम कर वो शख्स घर चला जाता है। और उसके बाद मैं जनाब स्पीकर ये कहूंगी कि वक्त आ गया है कि हमने अब अपनी गलतियों का जिक्र और गलतियों पर रोना नहीं रोना। उन लोगों का जिसने 70 साल पाकिस्तान को आगे नहीं बढ़ने दिया। कल महमूद अचकजई साहब ने यहाँ बयान दिया, कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ ने बयान दिया, वजीर आजम की तकरीर हुई, 2 तकारीर यहाँ से हुई, कुछ तकारीर उस साइड से हुई, लेकिन वो इज्तिमाई सोच जो इस पार्लियामान के मुकदमे को महफूज करेगी, इस पार्लियामान को इज्जत देगी। मेरा बच्चा मुझसे पूछता है कि ये कौन है जो पार्लियामान को गाली देता है, ये कौन है जो पार्लियामान के ऊपर लानत भेजता है, और उसका एक सवाल नहीं उठाया जाता। कल कोई खड़ा होता है, शाम को बैठते हैं जहां बैठते हैं, सिर्फ इस पार्लियामान के ऊपर बात करते हैं। हम एक दूसरे को गाली गलोच करते हैं, हम एक दूसरे के ऊपर लान तान करते हैं जनाब स्पीकर, लेकिन हम इस बात पे गौर नहीं करते कि हमने इस पार्लियामान को, आज फहमीदा मिर्जा साहिबा ने बात की कि जो फॉर्मर स्पीकर हो या फॉर्मर वजीर आजम को अकामे पे फारिग करके ना अहल कह के और ऐसे रिमार्क्स के साथ बुलाया जाता है, उसकी इज्जत का कोई पास नहीं, आइन उसको कोई इज्जत नहीं देता जो मौजूदा वजीर आजम होता है। हमारे हर फैसले को, मैं वजीर हूं, एक मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन को मैं रिप्रेजेंट करती हूं, मैं हर फैसले के बारे से पहले यह सोचती हूं कि यह कहीं चैलेंज हो जाएगा और यह काम खत्म हो जाएगा। लेकिन जनाब स्पीकर, बात को समेटते हुए मैं ये कहना चाहूंगी कि ऐसे फैसले, अगर ऐसे ही फैसले दोहराए गए तो आज 14 अगस्त 2017 जब इस मुल्क ने 70 साल मुकम्मल किए, अगले 70 साल भी हम इसी तरह मुकदमा अपना पेश करते रहेंगे और कुछ नहीं होगा। लेकिन वक्त आ गया है और ये वक्त
जिस तरह मोहम्मद नवाज शरीफ साबका वजीर आज़म पाकिस्तान को घर भेजा गया, आइंदा पाकिस्तान में इस तरह की न रवायत दोहराई जानी चाहिए और ना इस तरह का कोई भी फैसला आना चाहिए जिस फैसले के सबूत फैसला करने के बाद ढूंढे जा रहे हों। सुप्रीम कोर्ट के ट्रायल से लेकर आज नैब रेफरेंसेस और सप्लीमेंट्री रेफरेंसेस तक सबूत ढूंढे जा रहे हैं जिस पर करोड़ों अवाम के वजीर आज़म को जिस फैसले पर घर भेजा गया। ये रवायत ठीक नहीं जनाब स्पीकर। कल यहाँ का वजीर आज़म होगा, आज यहाँ का वजीर आज़म है, कल जिसको पाकिस्तान की अवाम चाहेगी, जिसको पाकिस्तान की अवाम मुंतखब करेगी, और नवाज शरीफ को तो पाकिस्तान की अवाम ने 3 दफ़ा मुंतखब करके इस ऐवान में भेजा है जनाब स्पीकर। वक्त आ गया है कि पाकिस्तान में तमाम तालीमी अदारों में तमाम अदारों की इज्जत को पढ़ाया जाए। पाकिस्तान में जमहूरियत की लाजवाल तहरीक को पढ़ाया जाए। तारीख राहों में जो मारे गए, जो शहीद हुए, उन सियासी मुदब्बिरों को पढ़ाया जाए। पाकिस्तान में मुंतखब वजीर आज़म की खिदमात, जो मुंतखब वजीर आज़म पाकिस्तान में आए, जो 17 वजीर आज़म अपनी मुद्दत पूरी किए बगैर घर भेजे गए, और जिन वज़राए आज़म की खिदमात हैं इस मुल्क के लिए, उनके बारे में पढ़ाया जाए जनाब स्पीकर। लेकिन अगर ऐसा ना हुआ और अगर हम लोग इसी तरह इनफरादी सोच में ढले रहे, इसी तरह हम डरते रहे, मैं आज सारे ऐवान के सामने आज भी हमें यह एहसास होता है कि किसी अदारे के बारे में खुदा न खास्ता किसी किस्म का कोई लफ्ज न निकल आए। 100 दफा हम सोचते हैं कि अदारे की इज्जत जो है वो, अदारों की इज्जत आईन की इज्जत है। जो आईन इज्जत इन अदारों को देता है वो हम सबको देनी चाहिए। इसी तरह तमाम अदारों को यही सोच रखनी चाहिए, क्योंकि हमने मुल्क को इज्तमाई तौर पर आगे की तरफ लेकर जाना है। लेकिन अगर हमने इसी तरह का रवैया रखा और इस पार्लियामान की इज्जत अगर हमने पार्टियों, इनफरादी सोच, वो पार्लियामान जो पाकिस्तान की अवाम का असल चेहरा है, वो पार्लियामान जो पाकिस्तान की अवाम की शनाख्त है, और वो पार्लियामान जो पाकिस्तान की अवाम की ताकत का सरचश्मा है, अगर हमने इस पार्लियामान की इज्जत न की, किसी अदारे ने भी इस पार्लियामान की तज़हीक की, तो पाकिस्तान की अवाम की तज़हीक है। और ये पेशावर, चकवाल, हरीपुर, जड़ावाला, फैसलाबाद, शेखुपुरा की तमाम अवाम, और सिंध में भी आप देखें ये आवाज उठ रही है, क्योंकि वो आवाज नवाज शरीफ के नजरिए की आवाज है, पाकिस्तान की अवाम के वोट के तकद्दुस की आवाज है, पाकिस्तान के मुंतखब नुमाइंदे जो पार्लियामान है उसकी इज्जत की आवाज है। तो आखिर में मैं तमाम मेंबरान को, तमाम अवाम को ये कहना चाहूंगी कि जो आवाज कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान से लेकर सिंध तक उठ रही है, अब वो दबने वाली नहीं है जी। बहुत शुक्रिया। और ये पाकिस्तान के आइन और कानून के मुताबिक ये आवाज पाकिस्तान की आवाम की है, इसको सुना जाए, इसको रद्द ना किया जाए। और अब जो अलम उठाया गया है वोट के तकद्दुस का, और पहले नवाज शरीफ ने अदलिया को आजाद कराया था, अब पाकिस्तान में नवाज शरीफ अदल को आजाद कराएगा। बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर जदून साहब। डॉक्टर साहब, और आपने देखा इस वक्त कौमी असम्बली का इजलास जारी है। वफाकी वजीर मरियम औरंगजेब इजहार ख्याल कर रही थीं। उन्होंने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि नवाज शरीफ एक जुनून, एक नज़रिया है। उन्होंने कहा कि PCO अदालतों के ऊपर हल्फ लेकर गलतियां नहीं, ये गुनाह था। उन्होंने ये भी कहा कि जुल्फ़िकार भुट्टो को फांसी पर ढोल बजाने गए, गलतियां तो सब भी हुई थीं। उन्होंने बात करते हुए कहा पाकिस्तान में हर इदारे को आइन के मुताबिक काम करना चाहिए।